Never again will the immense power of the state be weaponized to persecute political opponents, something I know something about. We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership, we will restore fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of law. And we are going to bring law and order back to our cities. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. This week, I will reinstate any service members who were unjustly expelled from our military for objecting to the COVID vaccine mandate with full back pay. And I will sign an order to stop our warriors from being subjected to radical political theories and social experiments while on duty. It's going to end immediately. Our armed forces will be freed to focus on their sole mission, defeating America's enemies. Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. I'm pleased to say that as of yesterday, one day before I assumed office, the hostages in the Middle East are coming back home to their families. Thank you. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. President McKinley made our country very rich through tariffs and through talent. He was a natural businessman and gave Teddy Roosevelt the money for many of the great things he did, including the Panama Canal,
which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made, and Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Above all, my message to Americans today is that it is time for us to once again act with courage, vigor, and the vitality of history's greatest civilization. So as we liberate our nation, we will lead it to new heights of victory and success. We will not be deterred. Together we will end the chronic disease epidemic and keep our children safe, healthy, and disease-free. The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Ambition is the lifeblood of a great nation, and right now our nation is more ambitious than any other. There's no nation like our nation. Americans are explorers, builders, innovators, entrepreneurs, and pioneers. The spirit of the frontier is written into our hearts. The call of the next great adventure resounds from within our souls. Our American ancestors turned a small group of colonies on the edge of a vast continent into a mighty republic of the most extraordinary citizens on earth. No one comes close. Americans pushed thousands of miles through a rugged land of untamed wilderness. They crossed deserts, scaled mountains, braved untold dangers, won the Wild West, ended slavery, rescued millions from tyranny, lifted billions from poverty, harnessed electricity, split the atom, launched mankind into the heavens, and put the universe of human knowledge into the palm of the human hand. If we work together, there is nothing we cannot do and no dream we cannot achieve. Many people thought it was impossible for me to stage such a historic political comeback. But as you see today, here I am. The American people have spoken. I stand before you now as proof that you should never believe that something is impossible to do. In America, the impossible is what we do best. From New York to Los Angeles, from Philadelphia to Phoenix, from Chicago to Miami, from Houston to right here in Washington, D.C., our country was forged and built by the generations of patriots who gave everything they had for our rights and for our freedom.
They were farmers and soldiers, cowboys and factory workers, steel workers and coal miners, police officers and pioneers who pushed onward, marched forward, and let no obstacle defeat their spirit or their pride. Together they laid down the railroads, raised up the skyscrapers, built great highways, won 2 world wars, defeated fascism and communism, and triumphed over every single challenge that they faced. After all we have been through together, we stand on the verge of the 4 greatest years in American history. With your help, we will restore America promise, and we will rebuild the nation that we love, and we love it so much. We are one people, one family, and one glorious nation under God. So to every parent who dreams for their child, and every child who dreams for their future, I am with you, I will fight for you, and I will win for you. We're going to win like never before. Thank you. Thank you. Thank you. In recent years, our nation has suffered greatly, but we are going to bring it back and make it great again, greater than ever before. We will be a nation like no other, full of compassion, courage, and exceptionalism. Our power will stop all wars and bring a new spirit of unity to a world that has been angry, violent, and totally unpredictable. America will be respected again and admired again, including by people of religion, faith, and goodwill. We will be prosperous. We will be proud. We will be strong, and we will win like never before. We will not be conquered. We will not be intimidated. We will not be broken, and we will not fail. From this day on, the United States of America will be a free, sovereign, and independent nation. We will stand bravely. We will live proudly. We will dream boldly, and nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours, and our golden age has just begun. Thank you. God bless America. Thank you all. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये भाषण आपने सुना। शपथ लेने के तुरंत बाद उनकी ओर से कहा गया कि सुनहरा दौर अमेरिका का वापस लौट आया है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि किस धमक के साथ ट्रंप ने कई बड़े निर्णय लिए हैं। अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम करेगी ट्रंप सरकार, ये पूरी तरह से उनकी ओर से स्पष्ट कर दिया गया है। मैक्सिको की खाड़ी का नाम अब अमेरिका की खाड़ी होगा। हम दुनिया में शांति लेकर आना चाहते हैं। मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद जोरदार तालियां वहां पर बजती हुई दिखाई दी। ड्रग तस्कर को आतंकी घोषित किया गया है। ट्रंप सरकार की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया है और इस पर भी लोगों ने वहां पर उनकी जबरदस्त तरीके से हौसला अफजाई की। घुसपैठ रोकने के लिए हम सेना की मदद लेंगे। अमेरिका में अब थर्ड जेंडर नहीं रहेगा। उन्होंने मेल और फीमेल का जिक्र करते हुए इसकी बात कही। इसको भी वहां के लोगों ने तालियां बजाकर इसका वेलकम किया। अमेरिका में सभी को बोलने की आजादी होगी। श्वेत अश्वेत सबको लेकर एक साथ चलेंगे और चुनावों के दौरान जितने लोगों ने उनका साथ दिया था उसका भी जिक्र करते हुए यहां पर राष्ट्रपति ट्रंप नजर आए। ड्रिल बेबी ड्रिल नीति का भी ऐलान उनकी ओर से किया गया है। अमेरिका फर्स्ट की नीति को आगे लेकर चलूंगा, अमेरिकी संविधान की मैं हिफाजत करूंगा, कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। हमारा जो देश है अमेरिका वो और ज्यादा महान बनेगा। बहुत सारे मामलों में आज तक जैसा पहले नहीं देखा गया है वो अब भविष्य में देखा जाएगा। जो बाइडेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें जो बाइडेन की नीतियों की यहां पर भी उनकी ओर से मुखालफत की गई है, जिसका उन्होंने शुरू में ही जिक्र कर दिया था। और हमारे साथ पुनीत अहलूवालिया जी, रिपब्लिकन पार्टी के नेता, लगातार जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में भी दीपक वोहरा जी हैं, महेश सचदेवा जी हैं और लगातार हमारे साथ विशाल पांडे मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक बार पुनीत जी फिर से आपके पास आते हुए, कई बड़े बड़े ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से किए गए और हम सब ने देखा है कि किस तरह से उनका वहां पर स्वागत भी किया गया। इसी बात की उम्मीद भी की जा रही थी कि कड़े और बड़े फैसले उनकी बहुत सारी बातों में आज झलकते हुए दिखाई दिए। 3 बड़ी बातें जिसका आप जिक्र करना चाहें।
एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने कहा है कि I'm a peacemaker and a unifier, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बिल्कुल क्योंकि वो चाहते थे कि और चाहते हैं कि एक दुनिया में शांति का प्रतीक हो। ये जो वॉर्स जो केओस हो रहा है, जहां पे यूएस को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही और साथ ही साथ जो बाकी देश हैं लड़ रहे हैं, वो एक 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 इकोनॉमिक पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं जिसमें एक शांति का प्रतीक बने और माहौल बने जिससे कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो, फेयर एंड बैलेंस्ड, और साथ ही साथ एक जो पैनामा कैनाल की बात है वो सीधा उन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया है कि अब अमेरिका की डोमिनेंस शुरू हो गई है और हमारी जो गोल्डन एज है वो शुरू हो चुकी है। तो बहुत से सवाल हैं, बहुत से पॉजिटिव स्टेप्स हैं, इंक्लूडिंग टेकिंग डाउन द कार्टेल्स, इमिग्रेशन, जो रूल ऑफ लॉ आता है, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी इंडिपेंडेंस, आपने जैसे बोला ड्रिल बेबी ड्रिल, और सो मेनी थिंग्स व्हिच ही इज ब्रिंगिंग बैक। और उन्होंने खास के जो अफ्रीकन अमेरिकन है, हिस्पैनिक कम्युनिटी है, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है, एंड ही सेड आई हैव हर्ड हिम वेरी क्लियर, आई हैव हर्ड देम वेरी क्लियरली, और स्पेशली ही रिकॉग्नाइज्ड मार्टिन लूथर किंग। और आपने शुरू में देखा उन्होंने सारे जो प्रेसिडेंट्स हैं उनका नाम दिया, उनको थैंक यू किया। It shows that this is a different president. He is coming in with a new vision, with a clarity. जो बाइडेन की आलोचना भी उन्होंने कुछ मुद्दों पर कर दी है, लेकिन बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई। मिडिल ईस्ट में बंधकों को किस तरह से छोड़ा गया, इसका भी जिक्र करते हुए आज राष्ट्रपति ट्रंप यहां पर दिखाई दिए, और शायद जो जितना बड़ा मैंडेट उनको अमेरिका की जनता ने दिया है, इसी तरह के कड़े और बड़े फैसलों की उम्मीद भी उनसे की जा रही थी। दीपक वोरा जी, 3 बड़ी बातें राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण की क्या नजर आई हैं? सबसे पहले तो उन्होंने वो कहते हैं ना, ही वाज पुलिंग नो पंचेस। उन्होंने सीधा आलोचना की है कि ये 4 साल बिल्कुल बेकार के थे अमेरिका के इतिहास में। जो बाइडेन का जिक्र, ये नहीं बोला कि बहुत अच्छे आदमी थे, अब जा रहे हैं जी हम उनकी इज्जत करने, नथिंग, स्ट्रेट लाइक एन अमेरिकन, स्ट्रेट अटैक। दूसरी चीज उन्होंने जो कही है कि अमेरिका का रिस्पेक्ट जो था पूरी दुनिया में बहुत कम हो गया था, अब उसको वापस लाना है। और तीसरा, पनामा कनाल का बड़ा अच्छा बोला, कनाल हमने गलती कर दी, पनामा को दी, लेकिन चला रहा था चीन उसको। वी हैव टू टेक इट बैक। ये चीन के लिए संदेश है कि आप जो मेरे बैकयार्ड में, जो मेरे गार्डन है मेरे घर के पीछे, आप उसमें घुसने की कोशिश करने, इसको मैं और बाकायदा नाम लेकर, मतलब बहुत कम ऐसा देखा जाता है किसी दूसरे देश का नाम लेकर अमेरिका का राष्ट्रपति पहले ही भाषण में सीधी और स्ट्रेट बातें करते हुए दिखाई दिया, और यहां पर राष्ट्रपति ट्रंप ने तमाम बातों का जिक्र किया। लेकिन ये जो नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई है, विशाल, इस पर जल्दी से आपकी टिप्पणी चाहूंगी, उसके बाद मैं अपने बाकी मेहमानों की चित्रा, देखिए नेशनल इमरजेंसी का मतलब बिल्कुल साफ है कि मैक्सिको बॉर्डर पर अब मिलिट्री की तैनाती भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की जाएगी, यानी कि पूरी तरह से मैक्सिको बॉर्डर को सील करने की तैयारी है ताकि अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से रोका जाए। और इसके बाद जो अगला कदम होगा डोनाल्ड ट्रंप का, जो बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासी अमेरिका में घुसे हैं उनको चिन्हित करके बाहर निकालना। और नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद बहुत सारी ऐसी शक्तियां होंगी कानून के हिसाब से, जिसके हिसाब से मैक्सिको से कोई अवैध तरीके से नहीं घुस पाएगा। 1 करोड़ 10 लाख हैं अवैध जो प्रवासी हैं, 1 करोड़ 10 लाख के आसपास उनकी तादाद है। बिल्कुल, और उन्हें चिन्हित भी करने का काम लगातार यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। लेकिन चित्रा, यहां पर अवैध घुसपैठियों के साथ साथ सबसे बड़ी बात, चीन को एक कड़ा संदेश डोनाल्ड ट्रंप ने यहां से दे दिया है। बार बार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई है, चीन के राष्ट्रपति को न्योता भेजा है। लेकिन आज अगर इस भाषण को देखें तो चीन को पनामा नहर के जरिए सीधे तौर पर यहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घेर लिया है कि हमने पनामा नहर को उन्हें नहीं दिया और पनामा नहर हम वापस लेंगे। तो ये भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन अमेरिका के नजदीक नहीं आ सकता है। अमेरिका और भारत की दोस्ती ही मजबूत रहेगी। चित्रा, ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है। महेश सचदेवा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन मधु भाटिया झा सीधे हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर उस जगह से मौजूद हैं जहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उसके ठीक बाहर मधु इस वक्त मौजूद हैं। वो भी गौर से सुन रही थी कि ट्रंप जो भाषण दे रहे हैं उसका हिंदुस्तान के नजरिए से क्या असर देखा जा सकता है। मधु, अगर भारत के नजरिए से इसको समझने और देखने की कोशिश करें, और 3 बड़ी बातें मधु, अगर आप बता पाए कि अमेरिकियों पर इसका किस तरह का असर होगा, 3 बड़ी बातें क्या नजर आई हैं मधु? सबसे पहले भारत के नजरिए से अगर आप बात करें तो सबसे बड़ी बात जो उन्हें खुलकर बोली वो थी टैरिफ के बारे में, और उन्होंने साफ कर दिया अपनी स्पीच में कि अमेरिकी के जो है वो टैरिफ जो है वो फॉरेन कंट्रीज को लगाएंगे, जिनमें सबसे सीधा इशारा भारत और चीन का नाम हमेशा वो लेते हैं, खासकर भारत का, जिन्हें वो टैरिफ अब्यूजर कहते आए हैं।
तो ये बात तो जाहिर है कि भारत के साथ जितना भी उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसमें भारत के साथ उनका सिस्टम बदलने वाला है। भारत को टैरिफ लगाने बढ़ाएंगे वो। ये तो बात भारत और अमेरिका के बीच थी। अगर बात करें 3 बड़ी बातों की, तो सबसे बड़ी बात जो मेक्सिको बॉर्डर पर उन्होंने इमरजेंसी घोषित की है, ये बात बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये इसका मतलब साफ है कि अब जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स वहां से अंदर घुसने की कोशिश करेंगे उन्हें तुरंत देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई भी असाइलम या फिर किसी भी तरह की राहत उन्हें नहीं दी जाएगी। और जो ऑलरेडी देश में मौजूद है उसके लिए उन्होंने फेडरल एजेंसीज को पहले ही तैनात कर दिया है, जिसकी खबर अलग अलग डेमोक्रेटिक गढ़ वाले राज्यों को भी दी गई है कि आपके राज्यों में भी अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो वो फेडरल एजेंट्स आकर उन्हें धरपकड़ करेंगे और उन्हें देश से बाहर निकालेंगे। पहला बात तो ये इमिग्रेशन का हुआ। दूसरा जो बड़ा मुद्दा उन्होंने बोला, जो अमेरिका भी बहुत असर डालेगा, वो है जेंडर का। यानी जो उन्होंने कहा कि अब अमेरिका में सिर्फ 2 ही सेक्स होंगे, मेल और फीमेल, यानी ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है, जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, उससे एक बड़ा धक्का लगा है। और ये पूरी दुनिया के लिए भी देखना हैरानी वाली बात होगी कि जहाँ पूरी दुनिया इस मामले में लिबरल होती जा रही है, वहीं अमेरिका और राष्ट्रपति इसके पीछे की वजह क्या है मधु, ये इस बात को हम समझना चाहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है, क्योंकि इसका न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में भी असर देखा जाएगा। हम सब ने देखा है कि थर्ड जेंडर या उनकी ओर से किस तरह से अपनी बातों को मजबूती से आगे बढ़ाया जाता है, जगह जगह प्रदर्शन होते हैं। अब चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से अगर ये बातें कही गई हैं, हो सकता है आगे आने वाले वक्त में इस बात को लेकर विरोध करता हुआ भी ये पक्ष हमें दिखाई दी जाए अलग अलग हिस्सों में। मधु जी बिल्कुल, इसका असर बहुत गहरा होने वाला है। विरोध प्रदर्शन भी बढ़ने वाले हैं और कानूनी लड़ाई इसकी बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि किस तरह से वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये साफ नहीं है। ये बात जरूर है कि इनका ये किसी वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है मधु, फौरन आपका मैं रुक करती हूं। किसी वजह से आपका ऑडियो नहीं पहुंच रहा है। महेश सचदेव जी, सीधे आपके पास आते हुए, टैरिफ को लेकर जो बड़ी बातें आज कही गई हैं, चीन को तो संदेश है ही, हिंदुस्तान के नजरिए से भी क्या इसको समझा जाए? यह हमारे लिए भी एक गंभीर बात है। देखिए, चीन और भारत के बारे में अमेरिका को ज़ीरो सम गेम नहीं समझना चाहिए। ये चीन के साथ जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है वो डोनाल्ड ट्रंप फिर से उसको किसी भी समय उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसा करने की मैं सलाह नहीं दूंगा कि भारत ऐसा ही ये सोच के चले कि चीन के साथ अगर कोई नेगेटिव है तो हमारे लिए वो पॉजिटिव होगा। मेरे हिसाब से जो चीज़ें भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो सबसे बड़ी उसमें से चीज़ आएगी वो ड्रिल बेबी ड्रिल आएगी क्योंकि हम तीसरे सबसे बड़े आयातक हैं तेल के। और अगर अमेरिका ने जो कदम पिछले 4 हफ्तों में उठाए हैं, चाहे वो डॉलर की उन्नति हो या चाहे वो रूस के ऊपर नए प्रतिबंध हों या ईरान के ऊपर नए प्रतिबंध हों, उससे तेल के दाम करीब 15% बढ़ चुके हैं पिछले 4 हफ्तों में। और अगर ड्रिल बेबी ड्रिल किया जाता है तो अमेरिका का जो पोटेंशियल है तेल के ज़्यादा उत्पादन का, वो पूरी तरह से उसको कामयाब किया जा सकेगा। और अमेरिका में शेल क्रांति से तेल का उत्पादन बहुत बढ़ा है, तो उससे वो तेल की जो कमी आ रही है बाजार में, उसको पूरा किया जा सकेगा। ये बड़ी बात है आपकी गई। दीपक बोहरा जी, बार बार जब ड्रिल बेबी ड्रिल का जिक्र हो रहा है, इस शब्द का, इसको लेकर आप बहुत खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं या तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक बोहरा जी, क्या वजह है? उसके बाद मैं मधु के पास जाऊंगी। क्योंकि 15 साल पहले इसी स्लोगन को जब गल्फ ऑफ मेक्सिको में बीपी का मेरा ख्याल ऑयल स्पिल हुआ था, ऑयल लीक हुआ था, तो लोगों ने कह दिया था स्पिल बेबी स्पिल, तो उसमें काफ़ी मुखालफत हुई थी। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, अभी नेशनल इमरजेंसी जो उन्होंने डिक्लेयर की है, मैम एक यूनिकली अमेरिकन प्रोविजन है कि 100 से ज़्यादा पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट को चली जाती और ये व्हाइट हाउस की वेबसाइट की तस्वीर सामने आ गई है, अमेरिका इज बैक, और वहां पर तमाम बातों का जिक्र किया गया है। वो मुझे पढ़ के हमारे पीसीआर के लोग बताएंगे, इतनी दूर से स्क्रीन पर मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर वही जो सुनहरे दौर की वापसी की बात कही गई है राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से, और भी तमाम बातें, और बिल्कुल जोशीले अंदाज में अमेरिका इज बैक।
का ये जो नारा गढ़ा गया है, ये जो इमरजेंसी पावर्स आएंगी फिर कांग्रेस से नहीं पूछेंगे, वो सब कुछ अपने आप कर सकते हैं, कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं चाहिए। डिफेंस जो उनके पास अभी सामग्री उन्होंने है, सेना की ताकत बढ़ाने का भी जिक्र किया है अपने भाषण में। वो इमरजेंसी में आप कर सकते हैं खुद, आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये 120 या 30 मुझे याद नहीं है, ये लॉज हैं जो कांग्रेस ने कहा ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट जो चाहे कर सकता है। बिल्कुल। और चित्रा देखिए, जो आप जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं, जी। अमेरिका इज बैक, ये व्हाइट हाउस का कवर पेज है और इस पे डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लग गई और लिखा है कि मैं अपना हर दिन अमेरिका के लिए लड़ूंगा और मैं तब तक आराम से नहीं बैठूंगा जब तक मैं एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका आने वाली पीढ़ियों को ना दे दूं। और आज से अमेरिका के सुनहरे भविष्य की शुरुआत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की फोटो के साथ व्हाइट हाउस पर यह कवर पेज लगा दिया गया। चित्रा देखिए, भारत के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, एक चीज ये बिल्कुल समझ लेनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते थे, इस बात की चर्चा हो रही थी कि H1B वीजा को लेकर बहुत कड़े नियम भारत के ऊपर लागू कर देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। कहीं ना कहीं बैकडोर से भारत की बातचीत चलती रही। और अगर हम टैरिफ की बात करें तो टैरिफ को लेकर भी भारत अपने हितों को यहां पर ख्याल रखेगा। वो एकदम ट्रंप के किसी भी सुझाव पर या किसी भी ट्रंप प्रशासन के दबाव में कभी नहीं आएगा। वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारत अपने निर्यात को पहले की तरह ही बनाकर रखेगा। और टैरिफ का असर कहा जरूर जा रहा है कि भारत पर बहुत ज्यादा पड़ेगा, चाइना पर पड़ेगा, पर ऐसा लगता नहीं है कि भारत बहुत आसानी से किसी भी टैरिफ के इस गेम में उलझेगा। चित्रा, यहां पर एक आंकड़ा है, मुझे लगता है कि दर्शकों को जरूर बताना चाहिए और उसके बाद चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। वो तस्वीरें भी जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने आई है, बिल्कुल जोश के साथ, और जब तक अमेरिका को महान नहीं बना दूंगा तब तक न रुकूंगा न थमूंगा, इस तरह की बातें कहते हुए वो नजर आए हैं। लेकिन भारतीय परिदृश्य से अगर इस बात को हम समझने और जानने की कोशिश करें, देखिए 2022 का एक आंकड़ा बताता है अमेरिका में 27 लाख भारतीय रहते हैं। अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की संख्या बीते सालों में काफी तेजी से बढ़ी भी है। कुल प्रवासी जनसंख्या में करीब 6% भारतीय प्रवासी हैं। H1B वीजा में भारतीयों की हिस्सेदारी 70% के आसपास बताई जाती है। अमेरिका में करीब 7.25 लाख अवैध भारतीय प्रवासी, इस तरह की भी बातें निकलकर सामने आती हैं और पिछले साल 1100 लोगों को वापस भी भेजा गया था। तो ये जो कुछ आंकड़े हैं उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यकीनन हिंदुस्तान भी अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ मुल्क है और जितनी हमारी आबादी, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, वो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, तो हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, और इसी वजह से अमेरिका की लगातार ये कोशिश होगी कि हिंदुस्तान को साध कर लेकर चलें, क्योंकि इस क्षेत्र में, इस पूरे के पूरे हिंद महासागर इलाके में हमने देखा है एक बैलेंस ऑफ पावर की कोशिश भी अमेरिका की ओर से समय समय पर की जाती रही है। हालांकि चीन के संदर्भ में जो बातें, दीपक वोहरा जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले मधु सीधे आपका रुख करते हुए, और कौन कौन सी बड़ी बातें जिनका तत्काल बहुत बड़ा इंपैक्ट अमेरिका पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा और उसका असर दुनिया भर पर भी दिखेगा, मधु, जिसका आप जिक्र कर रही थी पहले? मधु, दोबारा से मैं आपका कनेक्शन ठीक करवाती हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीपक जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब सुनहरे भविष्य की तो शुरुआत हो गई है और यकीनन एक मजबूती से चुने गए अमेरिकी लोगों द्वारा राष्ट्रपति से जिस तरह के भाषण की उम्मीद की जाती है, आज पूरी तैयारी के साथ उसी तरह उनकी स्पीच भी तैयार की गई थी। लेकिन फिर से मैं आ जाती हूँ भारतीय संदर्भ में, अगर हम समझे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो भारत के लोग हैं वो अमेरिका में रहते हैं, तो क्या बातें समझ में आती हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई खास असर इसके ऊपर पड़ने वाला है। H1B वीजा के लिए जो वो अलाउ करेंगे, वो चाहते हैं हाईली टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, क्वालिफाइड लोग, और वो भारतीय सब हैं। ये अब छोटे मोटे जो इलीगल चले जाते हैं तरीके, मैक्सिकन बॉर्डर से क्रॉस करते हैं, वो भी रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ इमरजेंसी उन्होंने लगा दी है। तो मेरा मानना है कि कुछ लोगों को डिपोर्ट ज़रूर किया जाएगा। अगर जैसा प्यू रिसर्च सेंटर ने कहा था कि वहाँ 7 लाख इलीगल इंडियंस हैं और 1100 आपने अभी फिगर दिया पिछले साल डिपोर्ट कर दिए, तो दोनों में कोई तालमेल नहीं बनता। 1100 भेज दिया और 7 लाख वहाँ बैठे हुए हैं। सो दीज फिगर्स आर सब्जेक्ट, लोग अपनी अपनी एनालिसिस करते हैं। लेकिन मेरे एक चीज़ मैम जो मुझे लगा इसका स्पीच सुन के, आई फाउंड इट वेरी मच लाइक नरेंद्र मोदी। इन्होंने बिल्कुल डिसाइसिवली बोला, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, क्लियर। ये नहीं कि हम सोचेंगे, हम विचार करेंगे, जब आपने मोदी जी का नाम नहीं लिया है तो उन्होंने जिस अंदाज में राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी है, मुझे लगता है कि उनका ट्वीट मैं पढ़कर सुना देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिखा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में आपके ऐतिहासिक उद्घाटन पर मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बहुत बधाई। मैं हमारे दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के लिए एक बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए एक बार फिर से मिलकर
साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं, आगे बढ़ाएंगे हम दुनिया को आगामी सफल कार्यकाल के लिए। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई हैं। और इसके पहले वो अब की बार ट्रंप सरकार, हालांकि ये एक दौर की बात हो चली है, लेकिन कहते हैं कि रिश्ते जब बहुत अच्छे होते हैं, हाउडी मोदी कार्यक्रम भी हमने देखा है, तो रिश्ते जब अच्छे होते हैं, नमस्ते ट्रंप जो गुजरात में हुआ था, उसमें वो एक्साइटमेंट भी हमने महसूस की थी जब उतनी बड़ी पब्लिक के सामने दोनों नेता एक साथ गए थे गुजरात में। और उसके बाद इन रिश्तों का भी विशाल क्या असर पड़ेगा आगे आने वाले वक्त में? बिल्कुल चित्रा, देखिए क्योंकि ट्रंप कोई नए नहीं है हिंदुस्तान के लिहाज से, और हिंदुस्तान के लिहाज से उनके संबंध बहुत अच्छे रहे और नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक पर्सनल बॉन्डिंग रही है। चाहे आपने हाउडी मोदी कार्यक्रम का जिक्र किया या हम नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की बात कर ले, या फिर तमाम जब ऐसे मौके आए जब ट्रंप और मोदी की बातचीत होती रही है अलग अलग मंचों पर। और आप देखिए अभी जो अमेरिकी राजदूत है एरिक गारसिटी भारत में, उन्होंने एक बयान दिया मुंबई में कि वॉशिंगटन में मोदी और ट्रंप की मुलाकात पहले होगी और उसके बाद लगभग 4-6 महीने के अंदर, जहां तक संभावना है कि मई जून तक डोनाल्ड ट्रंप भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए वापस आएंगे भारत। यानी कि ट्रंप और मोदी के रिश्ते बहुत अच्छे और ये भारत के लिए बहुत शानदार रहने वाला है आगे चलकर। ये कहा जा सकता है कि ट्रंप को भारत की बहुत जरूरत है, खासतौर पर अगर उन्हें चाइना पर कंट्रोल करना है। उन्हें यह पता है कि भारत ही एक ऐसा मार्केट है जहां पर यूथ है, जिसके पास बहुत सारी एबिलिटी है, बहुत सारी योग्यता है और वो भारत को कभी भी पीछे नहीं रखेंगे। और चीन को अगर उन्हें कंट्रोल में रखना है तो भारत का साथ उनके लिए बहुत जरूरी है। हालांकि चीन को लेकर इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान जिसकी चर्चा हुई थी, हमने एबीपी न्यूज के दर्शकों को भी दिखाया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चाइना अगर साथ में मिलकर काम करें मजबूती से तो दुनिया को वो बदल सकते हैं। तो समय समय पर इस तरह की भी बयान वो देते रहे हैं, कभी आंखें दिखाते हैं तो कभी दोस्ताना संबंध की भी बात करते हैं। लेकिन चीन से इतर हिंदुस्तान खुद आज जिस मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, यकीनन अब उसको लेकर ट्रंप अपने रिश्तों को लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे, बड़ा सवाल है। मधु, लेकिन सीधे आपके पास आते हुए आप देखिए, हम सब ने देखा था कमला हैरिस के जीतने के बाद हिंदुस्तान के लिए परिस्थितियां अलग होती, लेकिन वो बीते दौर की बात हो चुकी है। ट्रंप भारत के लिए नए नहीं हैं, कई बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हिंदुस्तान में उनके लिए किया गया, यहां पर आकर वो जा चुके हैं और नरेंद्र मोदी के साथ उनके संबंध भी जग जाहिर हैं। तो इसके आधार पर क्या ये माना जा सकता है कि आगे आने वाले वक्त में और गहरे रिश्ते दिखाई देंगे दोनों देशों के बीच में? अगर कुछ कंफ्यूजन कुछ मुद्दों को लेकर है भी तो उसको दूर कर लिया जाएगा समय के साथ। मधु, मैं आपकी की बातें शुरू करती हूँ। जब आपने कहा कि कभी दोस्ताना तो कभी आंखें दिखाते हैं, ये बात हमने पहले टर्म में भी देखी। जब राष्ट्रपति ट्रंप पहली बार आए थे तब भी भारत के साथ काफी दोस्ताना रिश्ता था, लेकिन ट्रेड के मामले में उन्होंने आते ही जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जो भारत के साथ था वो सिस्टम हटा दिया, वो जीएसपी भी हटा हुआ है। अब इस बार भी उन्होंने साफ कर दिया है कि टैरिफ के मामले में वो फॉरेन नेशंस के ऊपर भारी एक कदम उठाएंगे। यानी क्योंकि अभी अमेरिका का भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट का रिश्ता है, यानी भारत अमेरिका को ज्यादा सामान बेचता है और अमेरिका भारत से ज्यादा सामान खरीदता है। यानी भारत का रिश्ता जो अमेरिका के साथ है वो है ट्रेड सरप्लस का। ये चीज ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो कई बार कह चुके हैं कि इस मामले में वो जरूर कड़ा कदम उठाएंगे। तो इस पर भले ही उनकी एक दोस्ताना रिश्ते हो, लेकिन टैरिफ चेंज कहने की वजह से उस पर ध्यान देने वाली बात होगी। दूसरी बात ये भी है कि जब ट्रंप दोस्ती की बात करते हैं, आपने चीन की बात उठाई, अभी तक चीन के साथ उनका नर्म रवैया नहीं था, लेकिन इस बार इनॉग्रेशन में पहली बार उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को खुद ही फोन करके न्यौता दिया। वो दूसरी बात है कि चीन के प्रोटोकॉल के हिसाब से वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा, जो चीन की तरफ से भी पहल दिखाता है कि अभी तक इतने उच्च स्तरीय लेवल पर किसी भी सीनियर ऑफिसर को चीन चाइना की तरफ से नहीं भेजा गया था। यानी वो भी एक पहल कर रहे हैं। इसमें एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होगा ट्रंप के लिए, क्योंकि इलॉन मस्क जो उनके सबसे बड़े सपोर्टर हैं और जब से ट्रंप जीते हैं ये चुनाव उसके बाद हर जगह वो उनके साथ नजर आए हैं। इलॉन मस्क का बहुत बड़ा उद्देश्य है कि चीन के साथ नरमी बरती जाए। अब ऐसे में ट्रंप जो है भारत को भी साथ लेके चलेंगे क्वाड के मामले में, इलॉन मस्क के साथ भी उनको एक बात रखनी है कि चीन को किस तरह से नरमी बरती जाए। ये बैलेंस बनाना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा जो वो सीधा ही एड्रेस करना चाहते हैं। ठीक है विशाल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए टैरिफ को लेकर एक बार जब उनसे पूछा गया, बातचीत की गई, उन्होंने कहा था कि शब्दकोश का ये सबसे सुंदर शब्द है और जब भी टैरिफ की बात आती है तो वो भारत की चिंताएं बढ़ा देता है। और चित्रा देखिए, ट्रंप ये जानते हैं कि भारत अपने हितों को आगे रखता है और हमें याद होगा जब अभी एक चुनावी जनसभा के दौरान उन्होंने इस बात को बोला भी था कि भारत के साथ
कोई भी नेगोशिएशन करना बहुत कठिन होता है, और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में ट्रंप का यह बयान सामने आया था। तो इससे इतना ये ना समझा जाए कि ट्रंप आते ही भारत पर बहुत बड़े टैरिफ थोप देंगे या भारत का निर्यात कम हो जाएगा। मुझे लगता है कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्ते पहले से और ज्यादा आर्थिक तौर पर मजबूत करने का प्रयास करेगा। ये ट्रंप की भी एक तरह से आप कह सकते हैं जरूरत है, क्योंकि ट्रंप ने जैसा अपने भाषण में आज जिक्र किया है कि अमेरिका को महंगाई से निजात दिलाएंगे, वहां पे जो खाने पीने की चीजें हैं काफी महंगी हुई पड़ी हैं, अर्थव्यवस्था काफी पीछे गई है, और इसके अलावा नौकरियां अमेरिका में एक बड़ा मुद्दा चुनाव में रहा है। तो ये तमाम चुनौतियां अमेरिका के सामने भी दिखाई पड़ेंगी। तो वो टैरिफ भले कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये कनाडा, मैक्सिको और चीन ऐसे कुछ देश होंगे जिन पर बड़ी आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन चित्रा, यहां पर एक चीज और देखने वाली है कि इस पूरे भाषण में उन्होंने रूस यूक्रेन का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है, हाँ। मिडिल ईस्ट का जिक्र किया। मैं चाहूंगा अगर एम्बेसडर वोहरा इस पर कुछ बता मैं जल्दी से एक बात बता देती हूं, उसके बाद मिस्टर वोहरा इस पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, लगातार हम भारतीयों की बात कर रहे हैं, तो ट्रंप प्रशासन में जो भारतीय हैं उनका जिक्र करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी दो देशों की आपसी रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाने की बात कही जाती है तो इनका रोल बहुत अहम होता है। काश पटेल हैं जो कि डायरेक्टर हैं एफबीआई के, जय भट्टाचार्य हैं डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के, हरमीत ढिल्लो हैं आप असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हैं सिविल राइट्स के, विवेक रामासामी जिनकी बीते दिनों हमने बहुत चर्चा देखी थी वो सह अध्यक्ष हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के, और श्रीराम कृष्णन है सीनियर पॉलिसी एडवाइजर हैं एआई के। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि भारतीयों का दखल भी, और अब तो बार बार हम जब भी उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो फिर उनकी वाइफ का जिक्र होगा और फिर भारतीय खुश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर विशाल जिस बात का जिक्र कर रहे थे, वास्तव में टैरिफ को लेकर हिंदुस्तान को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक ट्रंप को तो सब जानते हैं, इस तरह से भी जो एक आम भारतीय है जो ट्रंप के जीतने पर खुशी मनाता हुआ भी दिखाई दिया था, हमने वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई दी थी। तो बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है दीपक वोहरा। मेरा नहीं ख्याल ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि ट्रंप साहब का ट्रेड के मामले में, फिनेंस के मामले में उनकी दुश्मनी भारत से नहीं है, उनकी दुश्मनी चीन से है। और अगर कोई है जो उनका साथ दे सकता है, जो चट्टान बन के खड़ा रहे और चीन को रिप्लेस कर सकता है, मैम, वो भूटान नहीं है, वो साउथ अफ्रीका नहीं है, वो अफगानिस्तान नहीं है, वो भारत है। इसीलिए वो ध्यान रखना होगा, जब अमेरिका फर्स्ट की नीति का बार बार वो जिक्र करते हैं तो अमेरिका के हित में जो भी देश होगा वो उसको लेकर, और अमेरिका का चाल चरित्र और चेहरा, हम खुश हो सकते हैं कि ट्रंप आ गए हैं, रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखेंगे तो हमेशा कई देशों को अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिका ओनली नहीं कहा है उन्होंने, अमेरिका फर्स्ट। हम भी श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, तो दोनों तरफ से जब ये होगा, कोई इसमें मैं नहीं समझता को बहुत बड़ा टकराव होगा। सोल्यूशन हम ढूंढ लेंगे मैम, वी आर द बेस्ट इन डिप्लोमेसी। हम चाणक्य की संतान है, वी विल फाइंड अ वे हाउ टू वर्क विद अमेरिका। जो पीएम साहब ने कहा, नरेंद्र मोदी ने, टू मेक द वर्ल्ड फॉर वर्ल्ड पीस, इसके लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। तो वेरी क्लियर मैसेज के साथ साथ हम चलेंगे। विशाल, पिछली बार 7 बार मुलाकात हुई थी नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, इस बार भी मुलाकातों का सिलसिला और बढ़ेगा, बातचीत होगी तो रास्ता निकल जाएगा। 2 से 3 मुलाकातें संभावित दिखाई दे रही हैं डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में, और जिसको लेकर तारीखें फिलहाल तय की जा रही हैं। यहां पर देखिए, अगर ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो भारत हमेशा से अपनी विदेश नीति में 2014 के बाद से भारत प्रथम की नीति पर काम कर रहा है। आप देखिए, जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, अमेरिका के दबाव में आकर बहुत सारे देशों ने रूस के साथ अपने जो आर्थिक संबंध थे उसको खत्म कर लिए, लेकिन भारत उस वक्त ऐसा देश था जो रूस के साथ खड़ा रहा। और आज भी आप भले आज डोनाल्ड ट्रंप यहां पर रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा अपने भाषण में नहीं कर पाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भी यह पता है कि अगर रूस यूक्रेन के मामले में आज दुनिया में कोई एक ऐसा नेता है, कोई एक ऐसा देश है जो बातचीत दोनों से कर सकता है, चाहे वो यूक्रेन से या रूस में पुतिन से, वो भारत है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ट्रंप को पूरी तरह से पता है कि भारत भी अपनी विदेश नीति में, अपनी नीतियों में भारत प्रथम को लेकर आगे चल रहा है, वो अपने हितों को पहले देख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जाहिर तौर पर भारत की बात नहीं करेंगे, वो अमेरिका की बात करेंगे क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कोई फैसले नहीं करेंगे जिसका बुरा असर भारत पर पड़े, क्योंकि जैसा एम्बेसडर वोहरा ने कहा कि
चीन को वो जरूर कंट्रोल करना चाहेंगे। उनकी लड़ाई चीन से ज्यादा रही है। भले उन्होंने प्रयास किया हो, थोड़ी उनकी नीति में बदलाव आया, खासतौर पर इस बार जब उन्होंने यहां पर अपना विदेश मंत्री जिन्हें मार्क रूबियो को जो बनाया है, उनका रुझान थोड़ा चीन की तरफ रहता है। लेकिन अमेरिका और चीन कभी नैसर्गिक दोस्त नहीं हो सकते हैं। वो भले परिस्थिति जन्य संबंध डेवलप हो जाए, लेकिन अमेरिका को यह पता है कि भारत के साथ अगर उसके संबंध रहे तो पूरा जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, जिसको लेकर क्वाड बना है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका हैं, वो भी तभी सुरक्षित है जब भारत अमेरिका के साथ रहेगा, ना कि चाइना। एक बार मधु भाटिया झा के पास चलते हैं महेश जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। मधु, अब यहां से एक नए युग का सूत्रपात हुआ, गोल्डन एरा जिसका वो जिक्र कर रहे थे कि सुनहरे दौर की वापसी हो गई, तो किन किन मायनों में अमेरिका या फिर वहां पर रह रहे भारतीय इस बात को ज्यादा महसूस कर सकते हैं जिसका जिक्र राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे थे? जी, पिछले कुछ समय से सबसे बड़ी जो दिक्कतें भारतीय अमेरिकियों को या आम अमेरिकी को अमेरिका में देखने को मिल रही है, वो है इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से देश में काफी सारे मुश्किलों का सामना, और दूसरा जो महंगाई बहुत बढ़ गई है। और ट्रंप ने लगातार अपने कैंपेन प्रॉमिसेस में यही कहा है कि वो आते ही इन दोनों मुद्दों को सबसे ज्यादा टैकल करेंगे। इनमें H-1B वीजा भी आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो मागा सपोर्टर्स हैं उनका लगातार ये कहना था कि इन बाहर से जो वर्कर्स आते हैं वीजा पर, उसकी वजह से आम अमेरिकी को नौकरी नहीं मिल पाती है। तब ट्रंप ने शुरुआत में तो इसके खिलाफ बात की थी, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से वो H-1B में बदलाव की बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरह से बदलाव लाया जाएगा कि सिर्फ मेरिट बेस्ड लोग यहाँ पर आए। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम H-1B वीजा को बंद कर देंगे या फिर हम उसको बहुत कड़ी उसमें रोक लगाएंगे। ये इशारा साफ करता है कि वो बाहर से वर्कर्स लाने के हित में है, यानी कि भारत के साथ जो उनका H-1B वीजा का रिश्ता है उस पर असर नहीं पड़ेगा। उसको आसान बनाने की क्या प्रक्रिया होगी, उस पर वो काम करने की बात लगातार करते आ रहे हैं। तो इसकी वजह से जो आम अमेरिकी है, जो भारतीय अमेरिकी समुदाय है, उसको भी एक न कहीं पे सांत्वना मिली है कि उनके आने के बाद इन्फ्लेशन हो, चाहे नौकरियों की जो उपलब्धि है, वो सब आसान होने वाले हैं। और यही उनको जो उनकी ट्रंप की कैंपेन प्रॉमिसेस थी उसको आधार बनाकर वो आने वाले दिनों को देखने वाले हैं कि किस तरह के उनके ऑर्डर्स पास होंगे। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की भी उन्होंने बात। मैं लौट रही हूं मधु, इस वक्त तमाम जो मेहमान है वो बाहर निकल रहे हैं और ऐसा लग रहा है सुबह से जो बारिश हो रही थी अभी वहां पर धूप खिल गई है, क्योंकि कड़ाके की ठंड है। वहां की तस्वीरों को देखकर ही हम समझ सकते हैं तमाम मेहमान बाहर निकल रहे हैं। लेकिन यहां पर जिन बड़ी बातों का बार बार जिक्र किया जा रहा है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आज शपथ लेने के तुरंत बाद कई बड़े ऐलान किए, जो लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। सुनहरे दौर की वापसी का उन्होंने भरोसा दिया है। कई महत्वपूर्ण ऐलान उनकी ओर से किए गए हैं। जो अवैध प्रवासी हैं उनके लिए तत्काल दरवाजे बंद करने की बात उनकी ओर से कही गई है। सेना को और ज्यादा ताकत देंगे, इसका जिक्र वो करते हुए दिखाई दिए हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने खासतौर से शिक्षा का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने वाले वक्त में कई बड़े क्रांतिकारी फैसले अमेरिका में लेते हुए आप दिखाई देंगे। और यहाँ पर तस्वीरें जो बाइडेन की दिखाई दे रही हैं और राष्ट्रपति ट्रंप भी हैं, तमाम दूसरे मेहमानों की भी हैं। मुझे लग रहा है ये विदाई वाला कार्यक्रम। दीपक बोहरा जी, इस पर टिप्पणी आपकी। जैसा आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया, हु इज ब्रिलियंट, अब ये गुड बाय कर रहे हैं और यहाँ से अब सीधा जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल गो टू द व्हाइट हाउस, जो पूरी तरह से वाकिफ हैं। अब जो बाइडेन की नीतियों की आलोचना आपने पहले ही भाषण में उनकी ओर से कर दी गई, उसके बाद जाकर उनको विदाई देना, ये क्या तो है बॉडी लैंग्वेज दोनों बड़े विदाई देना तो प्रोटोकॉल है। हाँ। लेकिन ये उनका मन कर रहा है कि अपनी मन की बात कर रहे हैं कि भाई आई हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन जो भाषण दिया था वो उनके दिल की आवाज थी कि 4 साल में आपने अमेरिका की छवि खत्म कर दी, यूक्रेन में आप इतने ऑब्सेस्ड हो गए, आपने पैसा जाया किया, ये किया वो किया। और उन्होंने मना कर दिया है कि दूसरे देशों के लिए अब अमेरिका की सेना नहीं जाएगी युद्ध लड़ने। क्योंकि अमेरिका की जो छतरी है उसका फायदा उठा के बहुत से लोगों ने अमेरिका के पैसे को भी ले लिया है। ये जानता है डोनाल्ड ट्रंप। मैम इनकी किताब पढ़ने वाले लायक है, सब लोग को पढ़नी चाहिए, 1984 द आर्ट ऑफ द डील। वो डील मेकर हैं और वो डील करेंगे। अमेरिका फर्स्ट बट नॉट अमेरिका ओनली, एंड अमेरिका अलोंग विद इंडिया। अब कमला हैरिस भी यहां से जा रही हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। यकीनन जिस तरह की लड़ाई उनकी ओर से लड़ी गई, बहुत सारे मुद्दों को भी उनकी ओर से उठाया गया। गर्भपात का मुद्दा उनमें से सबसे बड़ा था। और ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप, एक बार हमने देखा था ट्विटर पे उनके अकाउंट को लेकर भी किस तरह की बहुत बड़ी बहस, जब ट्विटर हुआ करता था, अभी तो एक्स हो चुका है, एलन मस्क उसके ओनर हैं, लेकिन उनके अकाउंट को बंद कर दिया गया था कुछ उनके ट्वीट की वजह से। लेकिन जब दौर लौट कर आता है तो फिर वो कितनी मजबूती से एक व्यक्ति को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर
बना देता है डोनाल्ड ट्रंप की। इन तस्वीरों को देखकर आप जान सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें आपके सामने है। महेश सचदेवा जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब विदाई समारोह और वहां पर मुलाकात भी कर ली है डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन से। क्या बातें होती होंगी, मैं अगर ऐसे ही पूछना चाहूं? ये तो कहने नहीं जाएंगे आपने बहुत, क्योंकि पहले ही आलोचना कर दी है कि आपने बहुत बुरा चलाया देश को। जी, जाते जाते बड़े खफा होके सनम आपके कूचे से हम निकले वाली बात हो रही है। लेकिन सीरियस तौर पे ये कहना चाहूँगा कि जो युग आज शुरू हुआ है उसमें अमेरिकी धनाढ्य लोगों का काफ़ी दौर रहेगा, बड़ा दौर रहेगा, चाहे वो इलॉन मस्क हों, चाहे और लोग हों। उनके साथ भारत के कैसे व्यापारिक या आर्थिक संबंध होते हैं उसका अमेरिका की नीति इन के तस्वीरों ऊपर पर मैं काफी चाहूंगी असर जरा पड़ेगा। टिप्पणी कर दूं। देखिए, एक युग का यहां पर समापन हुआ जो बाइडेन का। हमने देखा था किस तरह से उनके उम्र को लेकर वो बहुत सारी चीजें भूल जाते थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज कई बार उनकी पार्टी को असहज कर देती थी, इसी वजह से बीच चुनाव में उनको हटना पड़ा था। और अब राष्ट्रपति की विदाई हो चुकी है जो बाइडेन के उस पद से, और अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं और यहां पर अब उनको विदाई दी जा रही है। वो यहां से वापस जाते हुए मन में किस तरह की भावनाएं यहां पर उमड़ रही होंगी ये बताने की जरूरत नहीं है कि जब इतनी बड़ी ताकत आपके पास हो और वो सब कुछ छोड़कर आपको जाना पड़ता हो। कई ऐसे निर्णय भी रहे हैं जो बाइडेन के जिसकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई है। हम सब ने यह भी देखा था कि दो बड़े युद्ध का सामना भी पूरे विश्व को करना पड़ा और उसमें किस तरह से ये जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश और उसमें अपने आप को लगातार झोंके रखने की कोशिश की गई, उसमें भी बहुत हद तक जो बाइडेन को सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन यहां पर अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जो बातें कही गई हैं उसके जरिए वो किस तरह से कदम आगे बढ़ाएंगे, खासतौर से तब जब अभी भी रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर, हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ओर से जरूर एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जरूर यहां पर दिखाई गई जब कांग्रेचुलेट किया गया, और राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भी इसके पहले जब अपने भाषण दिए गए थे तो उनमें उन्होंने एक पॉजिटिव साइन दिखाए थे। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ राष्ट्रपति अमेरिका के, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति और एक जो पूर्व राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, अब वहां से वो जाते हुए आगे बढ़ते हुए। जल्दी से टिप्पणी सा, आपको बीच में रोकना पड़ा था। जी, जैसा मैंने कहा कि जब धनाढ्य लोगों की एक बड़ी उपस्थिति होगी ट्रम्प 2 में, तो उनके साथ भारत के कैसे व्यापारिक और आर्थिक संबंध होते हैं इन लोगों के साथ, उस पर काफ़ी हद तक निर्भर करेगा कि भारत और अमेरिका के देश के संबंध कैसे उभरते हैं। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि मुकेश अंबानी को बुला करके और उनके साथ दिखते हुए ये एक संदेश दिया गया है कि भारत के उद्योगपतियों के साथ अमेरिका के उद्योगपतियों को जोड़ा जाएगा और इससे चाहे वो अडानी का केस हो, चाहे और अडानी के मामले में हमने पिछले समय देखा था कि किस तरह से एक आर्टिकल के बाद जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ था, कितने सवाल खड़े किए गए थे। यहां पर विशाल, जल्दी से आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगी। अब कम से कम ये माना जा सकता है कि तमाम उन विवादों को लेकर पटाक्षेप होगा जिनमें बार बार हिंदुस्तान के संदर्भ में अमेरिकी हस्तक्षेप भी एक तरह से हम देखते रहे हैं। देखिए, एक ही बड़ा मुद्दा रहा है क्योंकि अभी तक जो बाइडेन प्रशासन रहा उसमें डीप स्टेट एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जिसको लगातार डोनाल्ड ट्रंप भी उठाते रहे और भारत में भी राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। और आप देखिए, आपने हिंडनबर्ग को लेकर उसको क्लोज करना पड़ा अपना ऑफिस, और वो भी ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक पहले। तो कहीं ना कहीं जो डीप स्टेट को लेकर चर्चा हो रही थी उस पर मुझे लगता है पूरी तरह से ताला जरूर लग जाएगा, क्योंकि अब ये नहीं कहा जा सकता कि डोनाल्ड ट्रंप उसका इस्तेमाल करेंगे अपने नजरिए से या नहीं करेंगे। इस पर तुरंत कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब तक जो होता आया है डीप स्टेट के नाम पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी रैलियों में, चुनावी वादों में कहा है कि अमेरिका की सरकार चलाएगी, ना कि कोई उद्योगपतियों का समूह। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने भाषण दिए हैं अब तक, मुझे लगता है वो उन पर खरे उतरेंगे, उसी हिसाब से काम करेंगे। और डीप स्टेट, क्योंकि आप देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स में इस तरह का दावा किया गया। डीप स्टेट पे मैं आऊंगी, पहले इन तस्वीरों पर ये जो हेलीकॉप्टर अब यहां से टेक ऑफ करने वाला है, इन तस्वीरों पर क्या बोलेंगे? कुछ खास जानकारी, कुछ खास
हाँ। मैं चाहूंगा एम्बेसडर बोहरा इस पर कुछ ये जा बताना रहे हैं चाह वहाँ पे बाइडेन क्योंकि रवाना जब हो भी रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति किसी जहाज में होते हैं उसके बारे में बहुत चर्चा होती है। अब जब पूर्व राष्ट्रपति एक हेलीकॉप्टर में आ चुके हैं तो उसके अब वो बारे जा में रहे क्या हैं, अपने घर बताएंगे? जा रहे हैं, व्हाइट हाउस तो नहीं जाएगा ना, वहां तो छोड़ दिया, उसका सामान पैक होके मुंह बस ले गए हैं। वहां अब पर जहाँ तो पे उन्होंने ट्रंप को कह दिया वेलकम होम। जी और अब ये जा रहे हैं, जो इनका घर है वहां जाके रहेंगे, मेरीलैंड में, जहां पर भी इनका अपना प्राइवेट होम है, वहां रहेंगे। सिक्योरिटी पूरी मिलेगी, नॉट एट द लेवल ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन एक एक्स प्रेसिडेंट के लेवल पे उनको स्पेशल यूनिफॉर्म लेकिन डिवीजन। जो बाइडेन के कार्यकाल को कैसे याद किया जाएगा? अब जब तक उनका सीधा बता दूं? जो टेक ऑफ नहीं करता है, सीधा आप बता दें। हाँ, बिना किसी किंतु पर विदाउट एनी हेजिटेशन। बिल्कुल। मेरा मानना है, और जो मेरे मित्र अमेरिका में जिनसे मैं बातचीत करता कहते हैं, रिमेंबर्ड एज द वर्स्ट प्रेसिडेंट इन रीसेंट अमेरिकन क्यों? हिस्ट्री। जो कुछ उन्होंने किया अमेरिका के लिए, पॉजिटिव क्या हुआ है? आप रूस के पीछे पड़े रहे, आप यूक्रेन में इन्वॉल्व हो गए, आप गाजा में ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया। आप बहुत आपने अपने जो संबंध थे कई देशों के साथ बिगाड़ लिए हैं। हाँ, आप अंगोला चले गए तो वही अफ्रीका के साथ अपने संबंध सही करने के लिए, और बट नो देखिए, मैम, अब ये G20 उड़ान में ले चुका है जो बाइडेन का ये जो चॉपर है वो आसमान की तरफ आगे की ओर बढ़ता हुआ। बहुत सारी बातें जो अब पिछली होंगी, जो यादें जुड़ी होंगी उनकी व्हाइट हाउस के जरिए, उसको वो समेट कर यहां से लेकर जा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर हम जो बाइडेन के पूरे कार्यकाल को देखें तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की खासतौर से 2023 की अगर अमेरिकी यात्रा के दौरान अंतरिक्ष में 5G 6G और सेमी कंडक्टर में कई समझौते भी हमने जो बाइडेन प्रशासन के साथ देखे थे, और GE F414 जेट इंजन और सामरिक खुफिया और काफी कुछ समझौते भी हम सब ने देखे थे। लेकिन जो हमारे रिश्ते खराब हुए इनके कार्यकाल में, जो बाइडेन जिनका चॉपर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, खालिस्तानी अलगाववादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में भारत के ऊपर किस तरह के आरोप उनकी प्रशासन की ओर से लगाए गए, तो इसको लेकर रिश्ते खटास के दौर से भी गुजरे और उसको मैनेज करना भी विशाल काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था उस वक्त हिंदुस्तान के लिए। देखिए, भारत बिल्कुल साफ तौर से इस मामले पर कह चुका था, किसी भी देश की एकता, अखंडता, उसकी संप्रभुता का सम्मान भारत हमेशा से करता है और भारत ऐसा कोई काम नहीं करता है जिस तरह के आरोप अमेरिका की तरफ से लगाए गए थे। हालांकि आप देखिए, भारत ने बार बार यह कहा कि जो भी भारत विरोधी तत्व विदेशी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहे हैं उन पर वहां की सरकार एक्शन ले, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया या यूके, जहां जहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन बाइडेन प्रशासन में कई बार हमने ऐसा देखा कि कुछ ऐसे मौके आए जब भारत पर अनर्गल आरोप लगाए गए, खासतौर कर अगर हम पन्नू के केस की बात कर ले, उस पर जो आरोप लगाए गए थे पूरी तरह से बेबुनियाद थे, उनका कोई आधार नहीं था। लेकिन जैसा आपने कहा, 2023 का जब प्रधानमंत्री स्टेट विजिट पर थे, उस समय मैं भी अमेरिका में मौजूद था, मैंने देखा बाइडेन ने कई बार उन्हें व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम किया। एक बार नहीं, मुझे याद आ रहा अच्छी तरह से 3 बार उन्होंने व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होस्ट किया, अपनी आम लोगों के लिए भी दरवाजे खोले गए, बिल्कुल आम लोगों और के लिए। पत्रकारों ने भी व्हाइट हाउस के कई ऐसे हिस्से थे जहां से अलग अलग जगहों पर जाकर लगातार वो रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दिए। व्हाइट हाउस का साउथ लॉन भी पब्लिक के लिए पहली बार इस तरह से खोला गया, जो वहां पर भारतीय आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, या जो अमेरिकी राष्ट्रपति उस वक्त थे जो बाइडेन, उनको सुनने के लिए, और भारतीय पत्रकार भी वहां पर मौजूद थे, मैं भी वहां पर मौजूद था। हमने देखा जो ओवल ऑफिस है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय होता है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में जो स्टेट डिनर दिया गया था, उसमें बाइडेन और उनका पूरा प्रशासन मौजूद था। गिफ्ट जो हीरा गिफ्ट किया गया था उसको लेकर भी देश में बहुत ज्यादा चर्चा चली थी, और हाल के चुनावों के दौरान भी हम सब ने देखा जो बाइडेन की वाइफ को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक गिफ्ट किया गया, उसको लेकर आज तक हम देखते आए हैं कि किस तरह से सवाल उठते रहे। लेकिन इन सब के इतर एक जल्दी से क्लोजिंग कमेंट महेश जी आपका, और उसके बाद हम यहां पर वाइंड अप करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि मजबूत होंगे रिश्ते भारत के साथ। हाँ। भारत के साथ एक आशावाद के तरफ से मैं ख़त्म करना चाहूँगा, और ये भी कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंसी का दूसरा दौर है, तो इसमें सही और असली ये 2 बड़े उद्योगपति, अब एक तरफ एलन मस्क का लगातार यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप से 62 गुना ज्यादा अमीर हैं। लेकिन ट्रंप के शासन में कितने एलन मस्क मजबूत होने जा रहे हैं, कई ऐसे ऐलान किए जा रहे थे जब हमने देखा कि एलन मस्क का चेहरा बहुत खिला हुआ था, और ये भी अपने आप में अभूतपूर्व रहा। एक इतना बड़ा उद्योगपति जिसने सब कुछ झोंक कर रखा था
ट्रंप के पीछे। और हम सब ने चुनावों के दौरान भी देखा था कि ट्रंप के लिए किस तरह से प्रचार प्रसार करते हुए हर एक ताकत के साथ नजर आए थे एलन मस्क। आज उनके लिए भी बड़ा दिन है, इसी वजह से ये तस्वीरें दिखाना आपके लिए बेहद जरूरी था। ट्रंप युग का अब सूत्रपात हो चला है। ये नया युग है अमेरिका के लिए, स्वर्णिम युग, स्वर्णिम अध्याय, जैसा कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से किया गया है। कहा गया है ट्रंप भारत के लिहाज से बहुत नए नहीं है। इसके पहले भी उनके कार्यकाल के दौरान हमने दोनों के बीच अच्छे और मजबूत रिश्ते देखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके जिस तरह के संबंध हैं, उम्मीद यही कि आगे आने वाले वक्त में दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आपस में मिलकर एक नए युग का सूत्रपात करेंगे, दुनिया को शांति की ओर लेकर जाएंगे, जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी की ओर से भी बार बार किया जाता है कि युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध ने जो संदेश दिया था शांति का, उसी का ये वक्त है। हर एक जानकारी अमेरिका से जैसे आएगी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।